Okay, so let's continue now. Yesterday I told you that matrix program. I hope you have completed that, right? So how many of you are able to complete that program? Addition of two matrix. So logical error. Okay, you should definitely I am telling you you should get the logical error, but try to solve that error. Try to solve that, because when you solve logical error, then only you will get the clear idea. Okay, okay. So don't worry, just try logical error. Whenever you get a logical error, try to solve that error. Okay, okay. So as I told you yesterday in the program, here just I'll give you one small recap, but you are going to complete this program today. Okay. So as I told you, we have a class matrix operation. In the matrix operation, there is a method called as create matrix. Okay, there is a method called as validate matrix. There is a method called as the matrix addition here. Okay, so one important method is there. See, okay, validate is there. Validate is there. Look at this. Here I have a method create matrix. Here I am going to create a number of rows and column for every row. So I will get this matrix. So everybody, are you clear with this code? Please reply. Are you comfortable with this code, everyone? Okay. So here create matrix which has total number of rows are 4, and for every row how many columns do you want? 2 columns, 3 columns, 4 columns and 1 column. 2 column, 3 column, 4 column and 1 column. Okay, remember this. 2 column, 3 column, 4 column and 1 column. For 0th row 2 column, for first row 3 column, for next row 4 column, and after that there is only 1 column. So I will get the matrix 1. I will get the matrix 1. Similarly, you can call this method, you will get the matrix 2. Then validate both the matrix. Now I want to insert the element in both the matrix. Before matrix addition, we need to add the element. Insert the elements. So matrix 1, matrix 2, okay, matrix 1, matrix 2, matrix 1, matrix 2, but no, just create only one matrix here. For only one matrix I want element right now. तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, go to the main class, go to main class, go to main class, create matrix. Okay, then next is create matrix, then add the elements, or you can say that slash n to insert elements, insert element. Third is matrix addition, fourth is matrix subtraction, matrix subtraction, then matrix multiplication. Okay, enter your choice. If choice is 1, if choice is 1, so here as I told you, if ch equal to 1, then allocate memory for matrix 1, matrix 2, put this code inside this bracket. After this, else if ch equal to 2, so then ch equal to 2, then you can call here, insert the, sorry, SYSO. ठीक है, एक काम कर दो, for some time just I will not add this code here, just remove this. ठीक है, validate both the matrix. If your matrix are valid, then matrix addition, no, before matrix addition, SYSO, enter elements in matrix 1. तो क्या करेंगे इसके लिए,
Okay, go to matrix operation. Insert element is the method here. Insert element is the method here. Okay, so listen carefully. Insert element is the method here. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? To insert the element, we need to use the logic I equal to 0, I less than matrix 1 dot length I plus plus for loop j is equal to 0, j less than matrix 1 of I dot length j plus plus. Okay, listen, I equal to 0, 0 less than total number of rows. First of all, I equal to 0. Okay, then 0 is a less than total number of rows. Suppose I have a 4 rows. Time I plus plus. Okay, then j equal to 0. J is a less than. Suppose 0th row there are 2 columns. Next row there are 3 columns. Next row there are 4 columns. Next row there is only 1 column. Imagine, see, assume that कि for 0 row 2 column, तो जब I 0 होगा तो ये लूप 2 बार घूमेगा, I 1 होगा तब ये लूप 3 बार घूमेगा, I 2 होगा तो ये लूप 4 बार घूमेगा, I 3 होगा तो ये लूप 1 बार यहाँ पे घूमेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स 1 के I and J is equal to matrix 1 of I and J is equal to SC dot next int. SC dot next int. So using this loop, you can insert the element in a matrix. Using this loop, you can insert the element in a matrix. तो एक बार element insert हो गए, element insert हो गए. अभी क्या करना है? मैट्रिक्स एडिशन करना है. क्या करना है? मैट्रिक्स एडिशन. बट रुको, सबसे पहले मेन क्लास में आ जाओ. कम टू द मेन क्लास. तो enter element in matrix 1. Enter element in matrix 1. What is the method name? Tell me. Method name is insert element. Method name is insert element. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? mo dot insert element pass the matrix 1. ठीक है. Next is SYSO enter elements in matrix 2. mo dot insert elements यहाँ पे आएगा matrix 2. ठीक है. ओके, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2. तो जब तुम मैट्रिक्स 1 को कॉल करोगे तो ये यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स होगा इसमें जो इंसर्ट होगा ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मैट्रिक्स 1 के लिए इंसर्ट होगा. जब तुम इसको कॉल करोगे तो यहाँ पे जो इंसर्ट होगा अभी वो मैट्रिक्स 2 के लिए इंसर्ट होगा. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई. तो मेरे हर लेक्चर में मेरा पहले लेक्चर का अगर एग्जांपल किया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर इजी होगा. रिमेंबर दिस. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि नाउ वी हैव वैलिडेट मैट्रिक्स मेथड. ओके, वैलिडेट मैट्रिक्स मेथड. सो आई विल रिपीट दिस. देखो, तो कल हम लोगों ने क्या किया था? वी हैव डिक्लेयर 3 एरे, 3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3. देन 1 फॉर क्रिएट मैट्रिक्स, 2 फॉर इंसर्ट एलिमेंट, then 3 for like a matrix addition, 4 for matrix subtraction. Enter your choice. If choice is 1, okay, allocate a memory for matrix 1. Allocate memory for matrix 1. तो यहाँ पे तुमने create को कॉल किया. ये देखो अविनाश, नहीं प्रथमेश, इसको कॉल किया. यहाँ पे पूछा कितने रो चाहिए, मैंने बोला 4 रोज. तो और उसके बाद मैंने 4 रोज allocate कर लिए. क्लियर? फिर मैंने बोला एंटर द नंबर ऑफ कॉलम फॉर ईच रो. एंटर नंबर ऑफ कॉलम फॉर ईच रो. तो यहाँ पे होता क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1 2 3 4. आई विल गेट द 4 रोज हियर. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा 0 1 2 3. तो इसके बाद क्या किया हम लोगों ने? I equal to 0. I is here right now. तो 0 लेस देन है 4 से. ठीक है. How many columns do you want in the 0 plus 1 row? मतलब first row. I said I want 2 columns. तो यहाँ पे मैट्रिक्स 0 के लिए तुम 2 कॉलम अलोकेट करो. तो यहाँ पे तुम्हें 2 कॉलम मिल जाएंगे. ये देखो, ये 2 कॉलम मिल गए. राइट. इसके बाद I becomes 1. 1 is less than 4. How many column do you want for 1 plus 1? Second row. I want a 3 columns. So यहाँ पे for the row 1 allocate the 3 columns.
So here I becomes a 1. Go to the next index. Allocate 3 columns here. After this I becomes 2. 2 less than 4. How many columns do you want? 2 plus 1 मतलब 3 third row के लिए. So here 4 column I want. How many column? 4 columns I want. For the second row I want 4 columns. I will move to the next position and allocate the 4 columns here. इसके बाद क्या होगा? I becomes 3. 3 less than 4. 3 plus 1 मतलब 4th row के लिए कितने कॉलम चाहिए? एक ही कॉलम चाहिए. तो थर्ड इंडेक्स के लिए एक कॉलम. तो यहाँ पे आएगा I becomes 3 and here you will get 1 column. तो ये हो गया मैट्रिक्स 1. तो ये मैंने कल मेमोरी एलोकेट किया था. याद रखो, जिन लोगों को लिंक नहीं है कल का लिसन. तो कल मैंने मेमोरी एलोकेट किया. रिटर्न दिस मैट्रिक्स. ये न्यू मतलब मेमोरी एलोकेट हो गया. उस मेमोरी का नाम मैट्रिक्स है. इसको रिटर्न कर दिया. रिटर्न होगा तो मेन के पास जाएगा. मेन उसको इस मेमोरी में डाल देगा. अभी तुम्हारे सामने नेम सेम है इसलिए तुम्हें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा. मे बी अगर मैंने इसका नाम एक्स लिया होता ना सपोज, तो इसका मतलब जो है मेरा मेमोरी यहाँ पे एक्स के पास आ गया. तो मतलब इसी मेमोरी को, इसी मैट्रिक्स को मैं एक्स बोलूंगा. लिसन, बट आई विल कीप द सेम नेम. आई विल कीप द सेम नेम. बट इमेजिन कि अगर इसका नाम एक्स भी होता ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, तो इसका इस मेमोरी का नाम क्या है? एक्स है. याद रखो, इमेजिन करो एक्स है या मैट्रिक्स 1 है. ठीक है, चलो इसको मैट्रिक्स 1 लिखते हैं. मैट्रिक्स 1. After this, allocate memory for matrix 2. Call the create matrix. Again, how many rows do you want? I said I want 4 rows once again. तो उसके लिए एक मेमोरी allocate करो. तो ये आएगा मेरा नया मेमोरी. Look at this. This is my new memory. Okay. This is the new memory, right? तो यहाँ पे होता क्या है? फिर for every row allocate the columns. Like again 2 row column, 3 column, 4 column. Return the memory to the main class. Return this memory to the matrix. Now matrix 2. ये जो memory मुझे मिला, so I got a memory here. I got the memory here. 0, 1, 2, 3. And इसका नाम होगा अभी matrix 2. So the first one is matrix 1 and this is the matrix 2. Okay, तो ये matrix 1 है, ये matrix 2 है. Remember this. Validate matrix. Matrix 1 and matrix 2 you can pass here. तो ये matrix 1 और matrix 2 को हम validate करेंगे. कल मैंने ये तुम्हें बताया था कि number of row दोनों के same है क्या. फिर दोनों के कॉलम चेक करो, सेम होगा तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो. सो यहाँ से जो भी रिटर्न होगा ट्रू और फॉल्स वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे. देन इफ द बुलियन वैल्यू इज ट्रू, देन नाउ यू कैन से दैट. अभी एक आज का लेक्चर शुरू हो गया, ये था कल का लेक्चर. ठीक है, यहाँ तक था कल का लेक्चर, राइट? सो इन टुडेज लेक्चर एज आई टोल्ड यू, एंटर द एलिमेंट इन मैट्रिक्स 1, कॉल द मैट्रिक्स 1. So your matrix name is same right now, matrix 1. तो ये वही मेमोरी है जो अभी हम लोगों ने allocate किया है, यही मेमोरी है वो. Understood now everybody? Clear? ये जो मेमोरी हम लोगों ने allocate किया, इसी मेमोरी में हम लोग insert करने वाले हैं डेटा को. Understood? Please reply. When you are passing the matrix 1, here, so you are going to insert your values inside this matrix. ठीक है, तो इसमें भी ये कोड भी मैंने पहले ऑलरेडी ये बता दिया तुम्हें. ओके, फर्स्ट डे पे मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि 2 डायमेंशन में एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना. लिसन केयरफुली. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन 2 डायमेंशन अरे. मतलब लाइक टुडे इज अ फ्राइडे, सो वेडनेसडे आई टोल्ड यू दिस कि तो अभी ये तुम्हें लिंक करना चाहिए. हाँ सर, वेडनेसडे को आपने बताया था, यस हमें समझ में आ गया ये कोड. तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने अगर उस लेक्चर को उसी दिन किया तो इट्स रियली इजी फॉर बोथ ऑफ अस. तुम्हें भी इजीली समझ में आएगा, मैं भी तुम्हें इजीली समझा पाऊंगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेडनेसडे को मैंने तुम्हें ये बताया था कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन मैट्रिक्स 1. तो पहले रो 0 होगा, फिर 0 नंबर के रो के कितने कॉलम्स है उसके लिए एलिमेंट इंसर्ट करो, फिर 1, 2, 3. तो ये हो गया
matrix 1 के elements. Similarly, enter element in matrix 2. Call the matrix 2. Insert element in matrix 2 now here. Insert the element in matrix 2. तो दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट चले गए, राइट. ओके, अभी करना है मैट्रिक्स एडिशन. यहाँ पे करना है मुझे मैट्रिक्स एडिशन. ठीक है, चलो यहां तक कुछ डाउट प्लीज रिप्लाई. इफ एनी क्वेश्चन आस्क मी. मैट्रिक्स एडी यहां तक तो आ गए. अभी मैट्रिक्स एडिशन करना है. तो मैट्रिक्स एडिशन जो करना है उसके लिए मुझे मैट्रिक्स 3 की जरूरत है, क्योंकि एडिशन कहां पे आएगा, एडिशन आएगा मैट्रिक्स 3 के अंदर. तो यहां पे मैं लिखूंगा मैट्रिक्स 3 इज इक्वल टू एड मैट्रिक्स. एड मैट्रिक्स, इसको पास करो मैट्रिक्स 1 कॉमा मैट्रिक्स 2. add matrix, go to this place now and here matrix addition जो है, इसको matrix addition लिखा तो भी चलेगा, no problem. Go to this place and call this matrix addition को कॉल कर लिया. matrix addition को कॉल कर दिया. एरर क्यों आ रहा है पहले ये चेक करो. क्या बोल रहा है ये, cannot convert from this to this, matrix 1 matrix 2. Why this error? So matrix 1 and matrix 2. तो ये आएगा तुम्हारा. ओके, हाँ दैट्स राइट, इंटीजर. Okay, so now addition, code for addition, right? तो अभी एडिशन करने के लिए यहाँ पे कुछ कोड, like there is some code is missing here. Can you tell me what is that? To perform the addition, यहाँ पे और कुछ काम करना पड़ेगा. कौन बताएगा? To perform the addition of two matrix. For what? Memory allocation for what? नहीं, ये तो ऑलरेडी चेक कर लिया. मैट्रिक्स आर सेम और नॉट. अगर मैट्रिक्स सेम है तो ही मैं एलिमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं ना मैट्रिक्स के एलिमेंट एक्सेप्ट करने में. ठीक है, टेकिंग द रोज एंड कॉलम फॉर मैट्रिक्स 1 वो तो ऑलरेडी हो चुका है. हाँ दैट्स राइट ओमकार, करेक्ट. मेमोरी एलोकेशन फॉर मैट्रिक्स 3, वेरी गुड. मेमोरी एलोकेशन फॉर मैट्रिक्स 3. allocate a memory for matrix 3. allocate memory for matrix 3. ये काम बाकी यहाँ पे मेमोरी allocation for matrix 3. ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी, इसके लिए क्या करना पडेगा. कसं काय होईल बरं विदाउट अलोकेशन, सांग. नल पॉइंटर एक्सेप्शन आहे जर विदाउट अलोकेशन केलं तर. जर तुझ्याकडे इथे इलेमेंट आहे, सपोज इफ यू हॅव इलेमेंट 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. So 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. तो ये तुम्हारे दोनों मैट्रिक्स है, राइट. ये दोनों मैट्रिक्स है. नाउ वेयर यू विल स्टोर द एलिमेंट, टेल मी वेयर इज द मेमोरी हियर. सपोज दिस इज योर कंप्यूटर मेमोरी, टेल मी द वेयर इज द मेमोरी 3. नम्रता, without allocating memory for matrix 3 you can't perform the addition. So now you need a memory here for matrix 3. but memory कैसे लेंगे, यूजर थोड़ी एंटर करेगा. नहीं, मेमोरी कौन एंटर करेगा, कोई नहीं. मेमोरी कैसे मिलेगा, जो भी मैट्रिक्स 1 का साइज है और मैट्रिक्स 2 का साइज है, आइदर मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, इनका जो स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ रोज और कॉलम का, वही मैट्रिक्स 3 के लिए होना चाहिए. नो, इसका मतलब होगा तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे कितना रो,
4 रो, बट कॉलम तुम्हें कौन सा मिलेगा? व्हाट इज दिस हियर? मैट्रिक्स 1 ब्रैकेट में क्या है ये? तो कॉलम कहाँ मिलेगा? रो तो मिल जाएंगे, दैट्स राइट प्रथमेश, बट वी लाइक सो कॉलम नहीं मिलेंगे यहाँ। कॉलम के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, allocate memory for matrix 3. So I will allocate a matrix 3 is equal to मैट्रिक्स 3 के लिए मैं अभी क्या करूंगा, देखो is equal to new integer of matrix 1 dot length, but column I don't know. मैट्रिक्स 1 के जो रो है वो यहाँ पे आएंगे, बट कॉलम आई डोंट नो। ओके, रो फ्रॉम द मैट्रिक्स 1, ओके 1 or 2 rows from मैट्रिक्स 1 or 2, ओके। बट अभी कॉलम के लिए क्या करेंगे? फॉर कॉलम यूज द फॉर लूप I equal to 0, I less than matrix 3 dot length I plus plus तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैट्रिक्स 3 के 0 रो के लिए न्यू इंटीजर मैट्रिक्स 1 का I रो का लेंथ। इसका मतलब क्या है, सुनो कि फॉर मैट्रिक्स 3 आई वांट 4 रोज, फॉर मैट्रिक्स 3 आई वांट 4 रोज। सो इसका मतलब यहाँ पे यू विल गेट द 4 रोज। लुक एट दिस 1 2 3 4 1 2 3 4, okay, but column we don't know right now. I don't know the columns right now. I equal to 0 0 1 2 3 4, I equal to 0 लेस देन है मैट्रिक्स 3 के लेंथ से, यस। तो मैट्रिक्स 3 के 0th रो के लिए मैट्रिक्स 1 का 0 रो के जितने, लिसन केयरफुली, मैट्रिक्स 1 के 0 रो के लिए जितने लेंथ है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स 3 के 0 रो के लिए मैट्रिक्स 1 का 0 रो के लिए जितने कॉलम्स है उतने यहाँ पे एलोकेट करो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? प्लीज रिप्लाई। मैट्रिक्स 3 के 0th रो के लिए मैट्रिक्स 1 का 0 रो का जितना कॉलम है उतना एलोकेट करो। क्लियर? I becomes 1. I will move to the next position. I will go to the next position. 1 less than 1 is a less than 4. मैट्रिक्स 3 के 1 रो के लिए, मैट्रिक्स 3 के 1 रो के लिए मैट्रिक्स 1 का 1 रो का जितना लेंथ है उतना एलोकेट करो। मैट्रिक्स 3 के 1 रो के लिए मैट्रिक्स 1 के 1 रो के जितने कॉलम है उतने एलोकेट करो। So here I will get a column from this matrix. ठीक है, so then I becomes 2 less than 3। मैट्रिक्स 3 के सेकेंड रो के लिए मैट्रिक्स 1 के सेकेंड रो के जितने कॉलम है उतना एलोकेट करो। So this I will move to the next position. ठीक है, and then I becomes 3 less than 4। मैट्रिक्स 3 के थर्ड रो के लिए मैट्रिक्स 1 का थर्ड रो का जितना कॉलम है उतना एलोकेट करो। तो ये आ गया इसका मेमोरी। एवरीबॉडी क्लियर नाउ? Understood? So I got a memory for the matrix 3. I got the memory for the matrix 3. Here I got the memory for the matrix 3. ठीक है? Now after this here perform the addition. Addition कैसे परफॉर्म करेंगे? For loop I equal to 0, I less than मैट्रिक्स किसी का भी लेंथ ले लो, नो प्रॉब्लम, I plus plus for loop j equal to 0, j less than मैट्रिक्स
j equal to 0, j is less than matrix 1 of I dot length and j plus plus and here I 0 0 less than this, j 0 0 less than this. अभी क्या करेंगे देखो, नहीं उसका मतलब रिपीटिशन ऑफ कोड होगा। रुको एक, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू ऐड वन मेथड हियर बिफोर एडिशन। रुको बताता हूँ मैं, जस्ट वेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स 3 के आई और जे के लिए मैट्रिक्स 1 का आई एंड जे प्लस मैट्रिक्स 2 का आई एंड जे, तो इससे एडिशन हो जाएगा। बट इनको प्रिंट करने के लिए आई विल टेक द अनदर मेथड डिस्प्ले मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज द सेम लॉजिक टू प्रिंट द डेटा। फिर ये लाइन चेंज करो यहाँ पे, चेंज दिस लाइन एंड SYSO यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स ऑफ I and J plus space and here new line, that's it। ठीक है, तो ये 0 रो 0 लेस देन है मेरा 4 से 0 कॉलम, 0 कॉलम मतलब जो भी J 0 इज लेस देन 0 थ्रो का कॉलम जो भी होगा वो, हाँ ये रिटर्न करना बाकी है। 1 सेकेंड, मैट्रिक्स 3 को रिटर्न करो यहाँ से, दैट्स राइट। और यहाँ पे प्रिंट करो, ये जो लूप ये जो मेथड रहेगा ना, ये सबको प्रिंट करेगा, मतलब मैट्रिक्स 1 को भी, मैट्रिक्स 2 को भी और एडिशन को भी। रुको दिखाता हूं मैं, एंड रिटर्न टाइप इज हियर, ऐसे। देखो इस टाइप के प्रोग्राम तुम लोगों को ट्राई करना ही पड़ेगा, ओके। जब तुम ट्राई करोगे तभी तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखो अभी मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स 1 इज, और कॉल करो एमओ डॉट डिस्प्ले मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स 1 को कॉल करो। सिमिलरली मैट्रिक्स 2 इज and matrix addition is matrix 3, ऐसे मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स एडिशन। तो इसको कंपाइल करो और रन करके देखो। देखो एक ही मेथड ने सबका काम कर दिया, समझ में आ रही है। ओनली वन मेथड आई एम यूजिंग फॉर I am using to display matrix 1, I am using to display matrix 2 as well as matrix 3. Understood? Only one method I am using to display matrix 1, matrix 2 and matrix 3. One for create matrix. How many rows do you want? I want 3 rows, 1 column, 2 column, 3 column. How many rows do you want? 3 rows, 1 column, 2 column, 2 column. देखो गलत किया मैंने, addition not possible, that's it. Why should I accept the data? अगर एडिशन पॉसिबल नहीं है तो मैं क्यों रो और डेटा एक्सेप्ट करूं? एम आई राइट? अगर एडिशन पॉसिबल ही नहीं तो मैं क्यों एंटर करूं रोज और कॉलम, है कि नहीं? टेल मी, डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इफ द एडिशन इज नॉट पॉसिबल। once again run the program, yeah that's right, to save the time. Create matrix 3 rows 1 column 2 column 3 column, 3 rows 1 column 2 column 3 column. Enter element 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। ये देखो ये हो गया मैट्रिक्स 1 का डेटा, ये हो गया मैट्रिक्स 2 का डेटा, ये हो गया दोनों का एडिशन। I hope you understood now. Everybody, please reply.
No, there is no inbuilt function for integrations. You have to write your own logic. Okay, you have to understand the formula and then implement that formula with the help of array, for loop and functions. Okay, ठीक है. So guys, this is the way you have to perform the. I have completed the example for addition of two matrix. You guys are going to complete for subtraction, multiplication, and transpose. Can you able to complete these three? Subtraction, multiplication, and transpose. Tell me. ठीक है, तो चलो एक काम करो, आज प्लीज कंप्लीट दिस एप्लीकेशन. और इसके अलावा आई वांट वन एप्लीकेशन फ्रॉम यू पीपल. जैसे हम लोगों ने जिन्होंने पाइथन किया या जिन्होंने सी में भी बनाया होगा, यू क्रिएट वन एरे. आई विल सजेस्ट टेक द एरे ऑफ स्ट्रिंग. सबसे पहले वेज मेन्यू मैंने बना दिया यहाँ पे. इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो. तो वेज कोर्स 1 ये आएगा, वेज कोर्स 2 ये आएगा, वेज कोर्स 3. तो लेट मी चेक योर इनोवेशन, फिर मैं बताऊंगा. उसके बाद यहाँ पे आएगा वेज का प्राइस आएगा यहाँ पे मेरे सामने. पहले का प्राइस है 200 रुपीज, फिर 250 रुपीज, फिर 300 रुपीज. ये होगा मेरा वेज कोर्स का प्राइस. ओके, इस 0 का प्राइस इस 0 के पास, इस 1 का प्राइस इस 1 के पास, इस 2 का प्राइस इस 2 के पास. ओके, याद रखो इसको. अभी तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे सामने मेनू आएगा. मेनू, तो मेनू में आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद मेन्यू, और उसके बाद आएगा प्राइस. सीरियल नंबर 1, मेनू का नाम है वेज 1 और इसका प्राइस आएगा 200. सीरियल नंबर 2 वेज 2, प्राइस आएगा 250. ओके, यहाँ पे आएगा टोटल. नहीं, टोटल अभी नहीं, ये आएगा तुम्हारे सामने मेनू. एंटर योर चॉइस. तुमने चॉइस दे दिया 1, तो यहाँ पे लिखो योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली. ऑर्डर नंबर 1 इज रिसीव्ड. ओके, सो यहाँ पे दे दिया हमने 1. हाँ, 1 मतलब वेज, याद रखो ये वाला कोर्स होगा. तो यहाँ पे लिखो डू यू वांट टू ऑर्डर मोर आइटम्स, और प्रोडक्ट कुछ भी होगा, वेज का होगा या इसी में प्रेस 1. फिर जब वैसे ही 1 प्रेस करोगे तो ये तुम्हारे सामने और एक बार आ जाएगा. सो एंटर योर चॉइस. चॉइस तुमने दे दिया यहाँ पे सपोज 3. पहला चॉइस 1 था, याद रखो. नेक्स्ट चॉइस 3 है, तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा योर ऑर्डर नंबर दिस इज रिसीव. ओके, यहाँ पे लिखो ऑर्डर नंबर 3 इज रिसीव्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे do you want to add, order the more items press 1, और for bill press 2. यहाँ पे वही होगा, और for the bill press 2. अभी 2 दे दिया मैंने, 2 प्रेस कर दिया, तो तुम्हारे सामने आएगा बिल इस तरीके से. बिल इज, सबसे पहले आएगा डेट. यहाँ पे अभी देखता हूँ मैं डेट कैसे लाओगे तुम लोग. इसके लिए थोड़ा हिंट देता हूँ मैं कि यू कैन, देखो लिख के देता हूँ यहाँ पे system.out.println. यहाँ पे लिखोगे न्यू डेट नाम का एक इनबिल्ट क्लास है यूटिल पैकेज के अंदर, तो इंपोर्ट कर लो. इसके लिए ऊपर लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे मत लिखो java.util.date. जैसे स्कैनर लिखा ना मैंने, वैसे डेट लिख सकते हो तुम लोग. तो इससे तुम्हारा डेट प्रिंट हो जाएगा उस दिन का, जो भी करंट डेट होगा. फिर उसके बाद आएगा सीरियल नंबर. तुमने क्या दिया था वो, तो तुमने बोला था जैसे कि 1. उसके बाद तुम्हारा मेनू कौन था, उसका नाम आएगा वेज 1.
उसका प्राइस क्या था वो यहाँ पे आएगा, उसका प्राइस था सपोज 200 रुपीज। उसके बाद तुमने 3 प्रेस किया था, वेज 3, उसका प्राइस था 300 रुपीज। इसका टोटल आ गया, वो लिखो यहाँ पे, टोटल आ गया 500। CGST आएगा इसके ऊपर, चलो क्या होगा जो भी आएगा, एग्जाम्पल लो 20 रुपीज, SGST आएगा 20 रुपीज। ओके, फाइनल टोटल आएगा 540। तो ये आएगा तुम्हारा फाइनल बिल, और नीचे लिखोगे थैंक यू, विजिट अगेन, विजिट अगेन, ऐसे। तो आगे जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस सिखाऊंगा कि इसको आगे पेमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट इस तरीके, ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है मैंने, इसको तुम तुम्हारे अजम्पशन से बनाओ, कैसे बनाओगे। अंडरस्टूड द क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। तो ये तो मेरा एक ही वेज मेनू का है, तो मेरे सामने ये बाकी में तुम्हें भी देखो क्या होता है कि आई डोंट वांट टू लाइक नो, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी लाइक score like frame here, like you know, just within that frame you should develop anything, whatever you want, you develop anything, like 1 for starters, 2 for the veg, 3 for the non-veg, 4 for desserts, ऐसे कोई ये बनाएगा। किसी को लग रहा है सर मैं क्या करना हूँ, आई विल क्रिएट अ फॉर शॉपिंग एप्लीकेशन, 1 for mobile phones, 2 for laptops, ओके, 3 for क्या होगा, पेन ड्राइव। अगर इसमें भी तुमने ले लिया 2 for लैपटॉप, इसमें भी आ सकता है लैपटॉप, इसमें भी आएगा 1 for डेल लैपटॉप, 2 for लिनोवो लैपटॉप, ओके, 3 for HP का लैपटॉप। क्लियर? तो अगर किसी ने प्रेस किया 1, तो 1 प्रेस कर दिया तो डेल का शोरूम में आ गए तुम लोग। यहाँ पे भी आएगा 1 for, अभी ये तुम्हारे ऊपर होता है डिपेंड। तो ये कैसे करोगे तुम लोग, इसके लिए तुम्हें डोमेन नॉलेज होना चाहिए। नाउ व्हाट इज डोमेन नॉलेज, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब क्या, इसके लिए तुम्हें अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा लैपटॉप के, उसके अंदर देखना पड़ेगा ये लोग कैसे डेटा को फिल्टर आउट करते हैं, एंड देन ट्राई टू पुट दैट डेटा इन योर कोड विथ प्रॉपर मेथड्स, फंक्शन एंड क्लासेस। अभी तुम्हें क्लासेस नहीं सिखाया मैंने फिलहाल, बट यू क्रिएट इन 2 क्लासेस राइट नाउ। नो नो, यूजर कैसे मेनू देगा ना, यूजर मेनू नहीं देगा, यूजर सिर्फ चॉइस देगा। यूजर का मेनू सामने दिखता है, यूजर मेनू नहीं देने वाला है यहाँ पे। फिलहाल तुम मेनू को मैंने कैसे हार्ड कोडेड करके रखा है, लुक एट दिस। इन फ्यूचर आई विल रीड दिस डेटा फ्रॉम डेटाबेस, इन फ्यूचर आई विल टेक दिस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, अंडरस्टूड। डेटा यूजर नहीं देगा, डेटा तुम्हें एरे में लेना पड़ेगा। सपोज दिस इज योर एरे हियर, जस्ट टेक द एरे हियर, लुक एट दिस एरे। एक एरे लो, उसके अंदर डेटा रखो, ठीक है, ये एक मेनू का डेटा रहेगा, ऐसा ही दूसरा भी रखोगे, ऐसा ही तीसरा करोगे। क्लियर? कीप योर डेटा इनसाइड अ एरे और उसको डिस्प्ले करो, ठीक है। हार्ड कोडेड वैल्यू रखो, डोंट टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, डोंट टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, don't take this value from the user, okay। Chalo, now I will stop the session and will continue Monday evening, not tomorrow now. Clear? I hope so, I will get some good applications from you people, okay, let's see, okay। Chalo, bye।